So, very warm good afternoon to all. I welcome you all in my YouTube channel Sai Edu Pharma. I'm very glad to say that I am having with us Payam Vora. Have you heard of Payam Vora? I met him in GDC function and he has scored GPAT rank 43rd. And I connected with him because in my time I used to be 53rd rank holder and he is 43rd. So, and he came to me, he met me. So I was very glad to meet him. And in this, in this duration, we became fond of each other. And moreover, I thought of having a small interaction with him so that our newcomers, our students, they get motivated. Because when I saw the detail of his the achievements, his biodata, then I got to know that he has, in very short time, he has achieved a lot. Especially, he has cracked 8 exams, 8 competitive exams, and that also all over India competitive exams. We will be talking with him. So, welcome, Payam, in Science Pharma. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you, Saedu Pharma and Chanchal, ma'am, for having me today. It's a pleasure to be having an interaction with you. So, Payam, we would like to have some background from where you are, how you came in this pharmacy field, please. So, myself, Payam Vora, and I am a Mumbaikar. So, after my C, I had given NEET as well, but unfortunately, due to I couldn't qualify NEET and I couldn't get a college. So, I thought that let's go for pharmacy because medicine is something that I was interested in. So, I chose pharmacy and I've completed my B Pharmacy from HK College of Pharmacy. And I have my GPAT All India rank 43, NIPER All India rank 11, CUET All India rank 1, ICT score rank All India rank 1. I am also BITS HD and GATE qualified. Along with that, I have my Manipal All India rank 08 and IIT PHU All India rank 07. वेरी नाइस. इतना सब आपने अचीव किया कैसे? देयर वाज सम मोटिवेटिंग फैक्टर या सम गाइडेंस? Yeah. So during COVID second year में there was like कि हम सब घर पे थे, we all were like ऐसे एकदम full, not so busy types थे, so we had lot of vacant time. So I thought let me utilize this, let me learn about various competitive exams just say after BPharm it's gonna help me. Then even Chanchal ma'am's channel in third year when I saw in her channel different scholarships available, how to write a research, how to write a review. So at that moment I thought that सिर्फ पढ़ाई is not of course it is necessary, but along with that certain extracurricular activities are also essential. So then I started writing review and research. I came to know कि कैसे कैसे लिखते हैं. पहले जब हम आर्टिकल लिखा था तब पता नहीं था कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है एंड वेरियस थिंग्स. तो जब मैम के चैनल पे मैंने पर्सनली उनके वीडियोस देखे देन आई रियलाइज्ड अच्छा हाँ दीज आर द फैक्टर्स, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग. सो वही बस मोटिवेशन था कि कुछ करना है लाइफ में जिससे लोग विल रिकॉग्नाइज. तो आपने कुछ कोचिंग ली या अपने आप पढ़ाई की? जी मैम मैंने कोचिंग लिया था जीडीसी एंड फार्माइलाइट से. सो इन माय थर्ड ईयर आई गॉट क्रैश कोर्स फॉर फ्री फ्रॉम जीडीसी बिकॉज दे हैड ऑर्गेनाइज्ड अ टेस्ट एंड टॉप 100 में आने वालों को फ्री क्रैश कोर्स टेस्ट मिल रही थी. सो आई गॉट देयर फ्री टेस्ट एंड फार्माइलाइट आई हैड एनरोल्ड फॉर माय जीपैट. आप शुरू से ही मतलब बहुत इंटेलिजेंट होशियार थे कि धीरे धीरे पढ़ पढ़ के हुए? नहीं मैम, वैसे बोले तो फार्मेसी में फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हर 8 सेमेस्टर में आई हैव बीन फर्स्ट रैंकर. तो तो ऐसे था कि बस एक्सेल करना है, जो भी करो बेस्ट देना है अपना, वो था. आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने कुछ सपोर्ट किया आपको? यस मैम, फैमिली तो हमेशा दे वर विथ मी, एकदम साथ में थे. कुछ भी एकदम लेट भी हो जाता तो रात को मम्मी खाना बेड पे लाके देते थे. तो अगर कोई लेक्चर्स भी ऑनलाइन चल रहे, जब कोविड था तब सब एकदम शांत बैठते थे कि हाँ उसका लेक्चर चल रहा है, लेट हिम स्टडी. फ्रेंड्स यस, सबने लाइक काफी बार सेकेंड ईयर में हमने ऑनलाइन ग्रुप स्टडी वगैरह किया है. सो आई हैड फ्यू फ्रेंड्स दैट हेल्प मी अलॉट फ्रॉम माय कॉलेज. तो आपने नाइपर भी ऑल ओवर इंडिया रैंक 11 है आपकी. तो इसके लिए जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपने पढ़ाई शुरू कर दी थी या सीधे फाइनल ईयर में आपने प्रिपरेशन किया? To be honest, the earlier you realize, the more time you get to prepare. मैंने after my semester 4 GPAT और नाइपर की preparation start कर दी थी. जैसे ही sem 5 शुरू हुआ, so there is a 1 month break in our university. So मैंने तब से GPAT and नाइपर की preparation start कर दी. ओके, तो कोई स्पेसिफिक कोई स्टडी मटेरियल या अपनी कोर्स की बुक से पढ़ा आपने? हाँ, सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने पियर्सन बुक को स्टडी किया. उससे सारे जो कॉन्सेप्ट्स देते हैं फिजिकल फार्मेसी का अलग, सो मैंने वैसे इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट उससे देखा. देन इनामदार से आई ट्राइड सॉल्विंग एमसीक्यूज ऑफ फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री. And then GDC का GPAT at your fingertips. I saw that book, so that was an end moment revision. And from our coaching, we had hard copy notes, so वो notes भी sufficed. ओके, सो अगर सपोज ऐसा बोले कि आपने थर्ड ईयर से यू सेड यू स्टार्टेड है ना Yes, प्रिपरेशन, third तो year. और लास्ट मोमेंट कोई टिप्स, जैसे कि एग्जाम से पहले कई बार बहुत टेंशन होती है सभी स्टूडेंट्स को, उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे हमारे स्टूडेंट्स को? ओके, एग्जाम के पहले देर आर डिफरेंट फेजेस. या तो 1 month पहले, 15 days पहले, या 1 day प्रायर. सो 1 month पहले आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कुछ भी नया पढ़ने की, एक्सप्लोर करने का वो मत करना. वॉट एवर यू हैव रिटन, इसलिए वी से यू शुड मेक योर नोट्स. आपके हैंडराइटिंग जब आप पढ़ते हो ना, वो ज्यादा आपके ब्रेन में ज्यादा बेटरली आप एब्सॉर्ब कर पाते हो उसे. लास्ट 15 days में ट्राई टू गो थ्रू ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ केडी त्रिपाठी वंस, एक बार. Then in chemistry, just quickly few important SARs. In physical pharmacy, फटाफट standard books को मत रेफर करना last 15 days में. जो करना था तुमने एक साल में कर लिया. अब just go through your flash cards और वो flash short notes आते हैं, glimpse notes. You can refer that. And एक या 2 दिन पहले तो I strictly prefer don't study. Let your brain calm down 1 day पहले, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई टॉपिक देखा जो आपने पढ़ा ना हो, you will panic. So it's better आप 1 day अपने पूरे ब्रेन को रेस्ट दे. So yeah. कुछ ड्यूरिंग एग्जाम कोई टिप्स हाँ, एग्जाम देते समय? स्कोरिंग. यस यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम देते समय इंपॉर्टेंट है कि आप पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाए दैट हाँ, दीज आर द थिंग्स दैट इज गोना हैपन. 3 hours है, 125 क्वेश्चंस है, इतना टाइम मुझे इसको डिवोट करना है. जब आप एग्जाम दे रहे हो, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा और वो आपको नहीं आ रहा है, पैनिक मत होना. इट्स ओके, इट्स नॉट नेसेसरी आपको सारे 125 क्वेश्चंस आए. मैंने खुद ने भी 102 अटेम्प्ट किए थे, मुझे 20 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चंस नहीं आए. सो इट्स ओके, यू स्किप दैट. आप नेक्स्ट को पार्ट देखो और सॉल्व करो, दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. उसमें यू गेट ऑप्शंस इन दैट न्यू सर्वर के कोलॉजी, केमिस्ट्री. सो आप अपना चूज कर सकते हो आपको कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है. सो आप उस वक्त अपने ब्रेन को बहुत काम रखना. एंड वाइल यू आर सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दैट आई केम टू अक्रॉस. आप 3 राउंड में सॉल्व करना. फर्स्ट राउंड में ओनली सॉल्व ऑल क्वेश्चंस दैट यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ, दिस इज गोइंग टू बी राइट. इन द सेकेंड राउंड, बिकॉज टाइम बहुत बचता है, मेरे टाइम पे भी बहुत टाइम बचा था, सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आपको डाउट है कि ये हो या ये है, एलिमिनेशन मेथड से बिटवीन 2 ऑप्शंस. एंड थर्ड इज प्योरली रिस्क और तुक्का. अगर आपको ऐसा है कि आपने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आप थर्ड राउंड में वो करो. बट यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगी. मेरा ये कहना है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ही करो. अगर आपने ओके. तुक्के ज्यादा लगा दिए तो वहां नेगेटिव मार्किंग हो जाती है हाँ. और हम गड़बड़ करते हैं. क्योंकि अभी मेरे यहाँ यस. हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यही बोला कि हमने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, लेकिन लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस रैंडम टिक कर दिए और वो गलत हो गए. तो हाँ. मैं फिर कहूंगी, हमको जीपैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक मंत्र है, आपको ये समझना है कि क्या नहीं करना है. दैट इज वेरी हम्म. इंपॉर्टेंट. तो क्या करना है वो तो आपको सभी बताएंगे, नहीं करना में मैं यही कहूंगी कि जो आता है 100% उसी को करो, ज्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ो, है मत. ना? हाँ. यस. तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि जब आपने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर लिया, तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? हाँ, कंफ्यूजन तो बहुत सारा आ गया, बट आई वुड से हार्डवर्क और परसिवियरेंस इतना करो कि तुम्हें कॉलेज चूज करने का मौका मिले, ना कि कॉलेज को तुम्हें. यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज. सो मैं नाइपर एंड आईसीटी के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था.
कि should I go for Naipur or should I go for ICT? So I was confused between ICT and Naipur because both are quite मतलब अच्छे brands हैं. So I was confused, but then finally I've decided I'll be doing MS in pharmacology from Naipur, Mohali. सो आपने फार्माकोलॉजी सिलेक्ट किया, कोई स्पेशल रीजन है फॉर दैट? हाँ यस, जब सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट में हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ा था, सो दैट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट के फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल ट्रायल इज अ फील्ड वेयर इट्स मेड फॉर मी, कि मुझे उसमें मजा आएगा. एंड वन पॉडकास्ट जो हमने चंचल मैम के साथ किया था, उसमें शी हैड ऑल्सो मेंशन्ड कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे आप कंपैशनेट हो, जिसमें आपका पैशन हो, तो आपको वो काम करने में मजा आएगा. सो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने एकदम श्योर हो गया उस दिन से कि हाँ तो कोलॉजी ही करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना. बहुत बढ़िया। ये चीज तो हम हमेशा से कहते हैं कि फार्मेसी में बहुत कुछ है, वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस की अगर हम फील्ड में जाएंगे तो वी विल एंजॉय। तो बाकी लोगों के लिए भी ये एक टेक अवे है कि बहुत सारी ब्रांचेस है फार्मेसी की। आप देखिए, आपको ड्यूरिंग 4 years ऑफ बी फार्म आपको कौन सी ब्रांच, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। एंड सेकेंडली आप ये थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि आप अपने आप को आगे कहाँ फील करते हैं, कि वेयर यू वांट टू गो इन फ्यूचर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी ब्रांच कुछ गलत ले लिया और आगे चल के आप रिपेंड करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग ब्रांच आफ्टर बी फार्म, है ना। तो एक चीज मैं यस, देख रही थी कि आपने बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, सो यू आर ऑल राउंडर। तो आपको कैसे टाइम मिला कि पढ़ाई के साथ साथ आपने पब्लिकेशंस भी किया? यस, मोस्टली जब मैंने एज मेंशन किया कि मैंने मैम के वीडियोस जब देखे थे, तो मैंने सोचा कि जब हमारा वेकेशन होता है उसमें मैं हर 2 महीने या हर 1 मंथ में एक पेपर लिखने का ट्राई करूंगा. सो हम्म। फ्यू ऑफ द पेपर्स आई स्टार्टेड, पहले बहुत टाइम लगने लगा बिकॉज साइटेशन कैसे करने हैं, हम्म। कौन से पेपर्स रेफर, वो नहीं पता था इतना. तो हम्म। देन मैं जब घर पे आता था लेट कभी कभी, तो जब कोई आई यूज टू सी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो मैंने सोचा वो टाइम वेस्ट है, वो डिटॉक्स करना जरूरी है. सो देन आई स्टार्टेड कि वो कम यूज करूं एंड देन उसकी जगह पे वो टाइम यूटिलाइज करूं इसमें. देन धीरे धीरे आई कोलैबोरेटेड विद अदर कॉलेजेस ऑफ मुंबई एंड उनके साथ भी मैंने पेपर लिखे. सो वो एक आ गया अपने आप के, हाँ बूस्ट अप हो गया कि हाँ आई कैन डू इट, एंड देन वो एक प्रैक्टिस बन गई, हैबिट बन गई. बहुत बढ़िया। फिर बुक भी आपने लिखी है? बुक चैप्टर, एक बुक बुक चैप्टर लिखा है आयुर्वेदिक रेमेडीज पे, जिसमें फॉर सोराइसिस उस पे था, तो वो एक बुक चैप्टर था, चैप्टर, वेरी हर्बल नाइस। रेमेडीज फॉर. बहुत बढ़िया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सारे एरियाज हैं जिस पे आपने वर्क किया है, बहुत कुछ आपने अचीव किया है, यू आर यूनिवर्सिटी टॉपर ऑल्सो। तो इसमें यस, ये बताओ कि आपको जब ये कैसी फीलिंग आती होगी जब हम इतना कुछ अचीव करते हैं, सब हमको अप्रिशिएट करते हैं, तो हाउ यू फील? वो फीलिंग इज टोटली डिफरेंट एंड यूनिक. मतलब वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपका हार्ड वर्क ने, आपको बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा है, हार्ड वर्क फाइनली आपका हार्ड वर्क पेड ऑफ. सो वो एक फीलिंग बहुत अच्छी आई कि हाँ अप्रिसिएशन मिल रहा है हर जगह से. ओके। सो आपको इंटरनेशनल बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिला यस, साइको फार्माकोलॉजी में। तो यस. ये साइको फार्माकोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया? सो फर्स्टली देयर वाज वन कंपटीशन इन मुंबई जिसमें हमें पोस्टर प्रेजेंटेशन करना था. सो उस पे आई हैड माय प्रोजेक्ट हर्बल मेडिकेटेड गमीज फॉर डिप्रेशन. सो उसमें वो जो टॉपिक था हमारा, वो हमने उस पे पब्लिश भी किया बाद में, पेपर हमने वो बनाए थे, तो हम वो लेकर भी गए थे हमारे गमीज इन द कंपटीशन. वी गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड. सो देन वी वर नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड from our category, and in November December the results were announced, and we got the best by ISSN award. We got the best researcher award in psychopharmacology. So anyways, I was interested in Alzheimer, depression, Parkinson, neurological disorders, psychological. Very nice. We congratulate your teachers, your family, especially HK College of Pharmacy, जहाँ से आपने पढ़ाई की है। कहीं ना कहीं आपके टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा आपके आज शेपिंग ऑफ कैरियर में, और साथ ही साथ Yeah. आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए आप एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो। और स्पेशली आपसे इस इंटरेक्शन का हमारा एम ये है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को ये दिखाएं कि बेटा देखो,
जो टॉपर्स होते हैं वो आपके जैसे ही होते हैं। ये बोलना चाहिए कि कोई अलग से दूसरी यूनिवर्स के लोग नहीं होते हैं, हम में से ही हाँ। लोग हैं। और अक्सर क्या होता है, इसमें अपने बेटे से ही बात करती हूँ तो कहता है, अरे वो टॉपर अलग ही होते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, वो उनमें अलग ही एक स्पेशल कुछ होता है। तो होता है, आई आई एग्री, डेडिकेशन होता है, सिंसियरिटी होती है, बट कोई भी टॉपर हो सकता है। एनी पर्सन हु इज सिंसियरली डूइंग हार्ड वर्क कैन बी अ टॉपर। तो ये बेसिकली यस। मुझे आपसे मिलके, आपसे जान के बहुत अच्छा लगा। एंड यू आर सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप आके मुझसे मिलेंगे और इस तरीके से हम एक आपस में एक कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे। सो आई गिव ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू। आप बहुत थैंक यू। अच्छा करें, बहुत अच्छा ग्रो करें, आपका चैनल अच्छा ग्रो करे। और साथ ही साथ आपका जो ये पैशन है कि हर फील्ड में एक्सेलेंट होना है, दैट इज वेरी नाइस। आप अच्छे से आगे अपनी स्टडीज को भी करें, जॉब में जाएं, और कभी भी हमारी जरूरत हो तो वी आर ऑलवेज देयर। एंड श्योर। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं चाहूंगी कि आप इनसे मोटिवेशन ले और ये देखें कि अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। So before going, I would like you to give some message for your colleagues, your batchmates, आपके एज के बच्चों को, और साथ में आपके जूनियर्स के लिए भी जो अभी श्योर। प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप एक समराइज करिए अपनी जर्नी को और साथ ही साथ उनको एक टेक अवे मैसेज जरूर दें। ओके। ओके। सो फर्स्टली आई एम रियली थैंकफुल टू मैम, जब बिकॉज उन्हें अब तक वीडियोस में देखा था, द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर लाइव, इतने हम्बल, इतने प्रॉपर, नो एटीट्यूड नथिंग, मैम ने इतने अच्छे से ग्रीट किया, शी वाज आस्किंग मी कि कैसा चल रहा है सब। सो बहुत अच्छा लगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से मिल रहे हो, जो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, शी इज अ प्रिंसिपल। सो वो एक मोटिवेशन वहां से मिल गया कि व्हेन मैम कैन डू दिस, तो हम तो अभी भी टीनेजर्स है, वी हैव टू, हमें और एनर्जी, हमें करना ही चाहिए। सो वो एक है। एंड बाकी मैसेज और टेक अवे की मैं बात करूं, सो एवरीबॉडी, डिस्ट्रैक्शन एंड सैचुरेशन हर किसी के लाइफ में आता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी के लाइफ में नहीं आता है, बट उससे बाहर आना, उसको ओवरकम करना जरूरी है। सो अपना एक गोल क्लियर रखो कि हाँ, आई हैव टू डू दिस, मुझे करना है। और एक जो तुम्हारा पाथ है उस गोल को अचीव करने का, वो भी काफी क्लियर रखो। सो डेडिकेशन, परसिवियरेंस एंड फोकस, ये थ्री कीवर्ड्स है आपके लाइफ में। ये अगर आपने अडॉप्ट कर लिए थ्री प्रिंसिपल्स, यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। एंड थैंक यू सो मच चंचल मैम फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू सो मच पैम। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम और डिटेल्स एक बार बता यस। दें। Yes, so I have my YouTube channel, Best Pharmacy Tips and Tricks, where I post videos from semester 1 to 8, frequently asked questions from Mumbai University and allied universities. And उस पे also मैं some commonly asked pharmacy के कुछ questions होते हैं। वहाँ पे मैम के साथ एक podcast भी हुआ था, वो भी है, अगर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैम डाल देंगे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। So if any pharmacy related आपको doubts हो तो मेरा channel Best Pharmacy Tips and Tricks पे you can find it. Thank you so much. All the best. And lots of congratulations to your family, your friends, your teachers. Okay, take care. मैम Bye. इवन यू हैव अ रोल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कॉस्मेटिक्स और काफी ऐसे कुछ टॉपिक्स थे, आई गेस हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का ही एक टॉपिक था जो मैम के चैनल पे था, तो वहां से भी मैंने पढ़ाई की है। सो फ्यू ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू साई एडू फार्मा एज वेल, Sure. टू चंचल। Thank you so much. और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक मोटिवेशन आप स्टूडेंट से ही हमको मिला। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम में कुछ नॉलेज है तो वो हमारे अपने कॉलेज की, अपने एरिया के बच्चों तक क्यों रेस्ट्रिक्टेड रहे, सबको हाँ। मिलना चाहिए। और मेरा तो एक थॉट प्रोसेस ये है कि 40-45 एज तक जब आप इतने सारे अपनी कंट्री के रिसोर्सेस को लेते हो, तो फिर आगे के 20-25 ईयर्स आपको वो रिटर्न देना चाहिए अपनी सोसाइटी को। तो ये मेरा करेक्ट। मेन एम है मेरी लाइफ का। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आगे भी हो सकता है कि हम कोई करंट टॉपिक या कोई ऐसा लगे हमको किस पर डिस्कस करना है, वी विल अगेन मीट। सो श्योर। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू यस। फार्मा। और बाकी व्यूअर्स के लिए कि अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं पायम से तो आप हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी कैन हैव अनदर सेशन विथ हिम। अगर कुछ डेफिनेटली। स्पेसिफिक आपको जानना है, कोई सब्जेक्ट वाइज जानना है कि इस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई किए या उसमें कैसे किए,
वो डिटेल, आज इंट्रोडक्टरी था, एक डिटेल वाला सेशन में हम फिर जाएंगे। थैंक Definitely. यू पाया। Thank you, ma'am. Thank you, viewers.